either the critically damped or over damped or undamped or the under damped. So two or three students have said, sir, we will try to build the critically damped system. So why they want to design the critically damped system? So anyone can answer this question? Why you want to design the critically damped system? So this is the response for the critically damped system. However, the under damped system, the response of the under damped system is like this one. Okay. However, the over damped system is like you can say this like this. Okay. And the undamped system, the response of the undamped system is like this one. So now why do you want to design only the critically damped system? Please. सर इसमें रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाता है. Is any other answer? Sir, because system achieves the steady state value early. Yes. सर ऑसिलेशंस कम होती हैं सर. Yes. सारे आंसर सही है. सारा देखिए, actually जब when we are going to design the control system, we have some control parameters like TR, rising time, peak time, settling time, है ना, overshoot, so MP. So there are certain parameters. So we want from the control system, so these parameters should be the optimum. Okay, this should be the optimum, right? So how this optimum parameters will achieve, right? So this is the question. This is another question. With the help of the controller, you can achieve this parameters. So now the question is, तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि इस तरह का राइज टाइम मिनिमम हो, पीक टाइम मिनिमम हो, सेटलिंग टाइम मिनिमम हो, ओवरशूट कम हो या ना हो, है ना. तो ये क्रिटिकली डैम्प सिस्टम उसके लिए परफेक्ट है. बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिजाइन द कंट्रोल सिस्टम, जीटा इज द मैकेनिकल फैक्टर. जीटा इज ड्यू टू द मैकेनिकली डिजाइन सिस्टम, राइट. So जब when you are going to design the system, it is not possible to fix the value of zeta equal to 1 exactly. Either it may be the greater than 1 or it may be the slighter less than 1 or slighter greater than 1, right? मतलब आप जब डिजाइन करेंगे तो इससे मे भी थोड़ा सा ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा, बट ज्यादा आप ज्यादा नहीं कर सकते बिल्कुल भी. किसी भी हालत में ज्यादा होगा तो आप उस सिस्टम को यानी अनस्टेबल बना रहे हैं, राइट. तो हम लोग करते क्या है कि then we have put it the value in between the value 0 and 1, right? So हम लोग we will try to keep the value 0.7, 0.8, 0.65 and 0.8 like that. Okay, but more you can say that the value of zeta must be approaching towards the 1, but it is not possible to fix the value of zeta exactly equal to 1, right? So that is the problem. So therefore we are studying the under damped system only. ठीक है, इसलिए हम लोग अंडर डैम्प सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं और विल ट्राई टू इंप्रूव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यू कैन से द अंडर डैम्प सिस्टम ओनली. इट इज क्लियर? एनी डाउट? So what is the characteristic? What are the different control parameters? So as we told, the rise time, peak time, settling time, delay time. So you already have studied these parameters in your control system class in the 5th semester. So what is the thus time I am refreshing all these parameters. So what is the delay time? Delay time is the 50% of the final value. Whatever the time is going to achieve the 50%. Okay. The peak value is the maximum overshoot. जहां पर जाएगा वहां पर maximum जो आपका होगा peak, उसको जाने में जो time लगे, whatever the time, that is the peak time, right? Rise time 100% जाने में जो time लगे, that is your rise time. What is the settling time? Settling time is defined for the 0.2% or the 5%, as you know that. Okay, so 2% or the 5%. So after the 4 zeta omega n, or you can say 4 tau value, you know the value is going to settle down. और आपने देखा है कि 4 tau के बाद tau का value जब 4 tau कर देंगे, तो मैंने आपको ये शो भी किया था कि 1 tau, 2 tau, 3 tau अगर हम वैल्यू पुट करें तो आप देखते हैं कि 4 टाउ के बाद 99.98 पॉइंट समथिंग के पास अचीव कर जाता है और दैट इज योर सेटल्ड, है ना. तो हम लोग इसको 2 टर्म में डिफाइन करते हैं, 2% और 5%. तो एक के लिए हमारे ख्याल से 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन होता है, बट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फार्मूला फॉर दिस. यू कैन रेफर द बुक. ओके,
So it is already told, है ना, what is the delay time, okay, what is the peak time, what is the maximum overshoot, okay. Now what is the, अच्छा, okay, one question is there. अगर let's say suppose I'm drawing this picture, let's say this is the one picture, right? So second peak, second overshoot कहाँ पर है, कोई बता सकता है? 1 2 3 मैंने लिखा है, 4 सर 1 2 3 पे। yes max. Three तो पे। आपको over 3, second overshoot is lying at the 3, not at the 2. It is the first undershoot. Remember, it is the first undershoot. It is the undershoot is the overshoot. So if the question is asked in the GATE exam, what is your overshoot? Okay. So this is the first overshoot, this is the second overshoot. Okay, and so on. Is it clear? One more term is there, that is the decay ratio. Decay ratio is also there, that is not discussed generally in the electrical control system. That is usually occurred in the chemical process control system. So what is the decay ratio? Anyone? सर रेशियो होता है Sir, सेकंड ओवरशूट और फर्स्ट ओवरशूट। Yes, first over peak or second over peak ratio, right? So this ratio or this ratio, whatever the ratio is, that is the decay ratio. Okay, good. So this is the delay time. So it's all clear. I don't think किसको बताने की जरूरत है. Now come to the step response of the under dam system. So हम लोग under dam system में क्यों study कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया. What is the logic behind that? Okay. So CS upon RS, as you know that the omega n square upon S square plus 2 zeta omega n plus omega n square is the transfer function for the second order control system. Okay, now we have to take the step response. The step response means RS is equals to 1 upon S. Just we have put it this. Okay, partial fractions आप इसको अलग अलग कर लें. Okay, you can solve this equation. After we have already solved, है ना, आप लोग इसको किए होंगे. तो करने के बाद this term is known as the omega d. Omega d इसको हम लोग कहते हैं. इसको सॉल्व किया हमने. ओके, तो कुछ इस तरीके का आपका फाइनल इक्वेशन आता है. ओके, you can drive this. कंट्रोल सिस्टम का कोई बुक हो, सब में ये दे रखा है इक्वेशन. ओके, किसी भी बुक में ये दे रखा है. तो यहाँ से आप इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव्स आप इसको कर लीजिए. ये इक्वेशन आएगा. दिस इज कॉल्ड द damped frequency. Okay, omega, where is the omega is the natural frequency, omega. Okay, so this omega d is known as the frequency of transient oscillation. Into the damped frequency, it is very important. Omega d is equals to omega n root under 1 minus zeta square. That is very important terminology. So when you are going to solve this equation, okay, जब आप इसको फाइनल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये बन गया आपका क्या, कॉस के टर्म में, ये बन गया आपका साइन के टर्म में, है ना. सॉरी, इसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन के टर्म में बन जाएगा. ओके, सो देखिए ये आपने क्या किया, इसको ओमेगा डी के जगह पे पहले से जीटा ओमेगा एन था, तो ओमेगा डी, व्हाट इज ओमेगा डी? ओमेगा डी इज नथिंग बट द ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर. तो आप उसके फॉर्म में लाने के लिए यू हैव मल्टीप्लाइड एंड यू हैव डिवाइड. तो समझ में आ रहा है? तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट. तो ये बन जाएगा आपका साइन वाला टर्म, दैट्स द कोसाइन वाला टर्म, एंड दिस इज यूटी. तो आप इसको जब सॉल्व किया, तो जस्ट यू गॉट द फाइनल इक्वेशन, and this equation is et is equals to 1 minus, that the Laplace inverse of this is 1, and this is a cosine term, so it cos omega dt, and since this is the s plus something, so e to the power minus zeta omega n is here. In similar way, this is the s plus zeta omega n, so e to the power minus zeta omega n is here, and this is the equation for the sine. Okay, one you can say omega. Yes. सर जीटा ओमेगा एन मतलब एक ये किसी टर्म को डिनोट करता है, मतलब उस कोई टर्म का नाम होता है. बिल्कुल बिल्कुल बताता हूं मैं. यही आपका जो फैक्टर है वो डैम्पिंग को रिप्रेजेंट करा रहा है. ठीक है, दिस फैक्टर, यही जो आपका इस ईटा ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन के चलते ये पूरे फैक्टर को आप अंडर डैम्प्ड सिस्टम को बनाएगा. अभी आप देखेंगे कुछ देर में. वेट फॉर मिनट. तो ये आपका दिस इज द साइन टर्म, साइन. इसमें यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ. इस इक्वेशन तो कोई प्रॉब्लम है, इसके क्या सिग्निफिकेंस वी विल सी आफ्टर दिस स्लाइड. In order to derive this equation, if you feel any problem, you are free to ask.
Any query? Yes or no? No, sir. Okay. Okay. So तो अब इसका क्वेश्चन ये है, व्हाट जिसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, और यू कैन से कि इस टर्मिनोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस, क्या वैल्यू, क्या होगा। सो देखिए कॉस ओमेगा टी है क्या, साइनोसॉइडल सिग्नल और कोसाइनोसॉइडल सिग्नल करेगा क्या बेसिकली। सो ये सिग्नल अगर अगर ये जीटा अगर e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा ना होता तो ये सीधा अनडैम्प्ड सिस्टम बन जाता, सीधा अनडैम्प्ड सिस्टम है ये, मतलब सर्कुलेट आपका ऑसिलेशन होता रहता है। But due to the e to the power minus, what is the curve, what is the nature of e to the power minus zeta by e to the power minus x? This is the curve, if I'm not wrong. Yes or no? So due to this value, this nature, this is bound to, give the nature of the underdamped system, right? बस समझ में आया कि नहीं आया? So ये आपका इक्वेशन बन गया, ct is equals to 1 minus e to the power minus zeta omega nt cos, आप इसको कॉमन लेके आप ये कर दिए सॉल्व। सो नाउ सी व्हाट, अभी जो मैं बोलना चाह रहा हूं, व्हाट हैपन व्हेन जीटा बिकम 0, व्हेन द जीटा बिकम 0 देन दिस टर्म बिकम्स वैनिश, और केवल क्या बचेगा, ओमेगा ये वाला टर्म बचेगा। तो 1 माइनस दिस टर्म विल बिकम्स, यस और नो। और ये है क्या, दिस इज द अगेन द कोसाइन सिग्नल। तो अनडैम्प्ड सिस्टम बन गया। तो जीटा इक्वल टू 0 पे आप क्या कंसीडर किए थे, पहले भी आपने कंसीडर कर रखा था, दिस इज द सिस्टम अनडैम्प्ड सिस्टम, यस और नो, यस और नो। सो व्हेन, yes, so if the value of the zeta is let's say 0.1 and omega n equal to 3, I have taken the consider, so you can see that just to can plot this equation on the MATLAB, just to you can plot this, और underdamped system कुछ इस तरीके का आएगा। Is it clear? So if the value of the zeta is 0.5 and you have fixed the value of omega n, then तो देखो आप जीटा जैसे आपने किया, the value of the zeta you have increases, the oscillation is already decreases, right? और आप देखिए the value of zeta is 0.9 है, you can see, तो इसका क्या मतलब हुआ, the value of zeta is increasing from 0 to 1, then the nature is going to undamped to, yes please, undamped to critically undamped damped. to underdamped and then critically damped, critically damped। तो ये नेचर उसमें चेंज हो रहा है। ओके, now come to the next, that is the stability. So you have already studied these things in the previous semester as I perception. So ये जितने मैंने बातें बताए हैं इसलिए बताया कि आपको पढ़ना था, इसलिए बताया है कि इसका आगे यूज होगा जब मैं कंट्रोलर डिजाइन कराएंगे। ओके, जब कंट्रोलर डिजाइन होगा, पीआईडी कंट्रोलर व्हाटएवर ट्यूनिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तब ये सारा कॉन्सेप्ट दोबारा यूज होगा। तो आप उसको प्लीज अभी इसको अच्छे से पढ़ के दिमाग में बना लें। अगर कोई भी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है? क्योंकि इसी के बाद हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज द controller. That is very, very important. Okay, so now I'm introducing the new concept of stability, and you already studied the stability criteria in the control system. So can you aware what are the different stability criteria? Please name 1 or 2, 3, 4 stability criteria. What you have RH criteria, sir. Routh Hurwitz criteria. Sorry, root locus, yes. Body plot. Third, body plot, ठीक, very good. Nyquist plot. Polar plot. Sorry, Nyquist plot and बोल्ट प्लॉट हो गया, पोलर, इसके अलावा पांचवा कोई बताओ। polar plot. Sir, polar. पोलर प्लॉट तो Nyquist का plot है, वो तो नाइक्विस्ट है। और आपने इतने पढ़े हैं? Yes, sir. सर यही चार पढ़े। आपके सिलेबस में क्या है? ओके, आपके सिलेबस मेनली यही है, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में बेसिक यही है। ओके, गुड। नाउ कम टू दिस। सो पहले तो हम ये समझे कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी, देन वी विल गो टू द क्राइटेरिया, व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर दिस
डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए कौन कब अप्लाई करना है, ये तो हम क्वेश्चन बाद में होगा. बट व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेबिलिटी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्टेबिलिटी. सो अगर हम किसी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप 3 सिस्टम देख रहे हैं. विच वन इज द मोर स्टेबल, विच इज द अनस्टेबल, तो आप, और विच वन द न्यूट्रल. तो ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले तो ए और बी है, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. सर दूसरा वाला जो है सर, अगर उसमें थोड़ा सा भी हम मूवमेंट देंगे तो वो फिर से मूव हो जाएगा और फिर नया पोजीशन में एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा. बट जो Very पहला good. वाला है सर वो Yes. उसी पे रहेगा चाहे कुछ भी उसको मूवमेंट दे. Yes, इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट यू कैन से, आई एम जस्ट थिंकिंग यूजिंग द टेक्निकल टर्म, इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी इसका यहाँ पर इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट इसने ले रखा है. बट जब सब पर्टर्बेशन करेंगे, पर्टर्बेशन मींस जब इसको हम डिस्टर्ब करेंगे सिस्टम को, तो ये सिस्टम कुछ देर के बाद फिर से कुछ अपने आप, सपोज यहाँ पर जाकर अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ देर के बाद इधर जाके अपने आप को शेप पे फिर से वो ले लेगा और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर लेगा. So such type of system is known as neutral. However, in this system, this is the stable system. आप इसमें डिस्टर्ब करेंगे भी तो ये भी स्टेबल इसी मोड में रहेगा, until unless कि ज्यादा perturbation, यानी कि ज्यादा इस पे आप डिस्टर्बेंस ना लगे. Same, exactly. Okay. So now unstable. What is the unstable system? You can understand these things by the picture only. Visualization की क्या किस तरह का unstability है ये, highly unstable system, right? Now, so what is the concept of stability? So when a process, now it is in the technical term, you can say that whenever a person asks you what is the meaning of a stability, so आप केवल आप उसको फार्मूला नहीं बताइए कि सर पोल जहां पर होगा निगेटिव होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, ये तो बात है ही, बट ये तो क्राइटेरिया, राइट, कि होना चाहिए. लेकिन मतलब क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ द स्टेबिलिटी, यू कैन अंडरस्टैंड इट when a process is disturbed. Disturbed means, disturb का मतलब है कि बहुत हाई वैल्यू से नहीं, it is a perturbation. Perturbation is technical term. तो perturbation from an initial steady state, say by the implementing a change in the input friction force function, it will generally respond in the 3 ways. जब आप उस पर इनपुट लगाएंगे, जब चेंज करेंगे आप, जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो 3 टर्म में वो रिस्पॉन्ड करेगा. पहला टर्म, प्रोसीड टू अ स्टेडी स्टेट एंड रिमेन देयर, वो दोबारा से सेम आकार में आ जाएगा. फेल टू अटेन द स्टेडी स्टेट कंडीशन बिकॉज इट्स आउटपुट ग्रो इंडेफिनिटली. एंड थर्ड इज द फेल टू अटेन स्टेडी स्टेट कंडीशन बिकॉज द प्रोसेस ऑसिलेट्स इंडेफिनिटली विद अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि एक तो इस तरीके से चलता जाएगा. एक ये है कि कुछ तरह के बाद इनफाइनाइट टाइम के बाद से फिर से सेटल हो जाएगा, और कुछ ये है कि ये आपका डिस्टर्ब किया और इस तरह का सिस्टम आ गया. ओके, सो दिस इज द नेचर ऑफ द सिस्टम व्हेन यू अप्लाई सम डिस्टर्बेंस. ओके, सो यू कैन सी हियर, okay, the 3 different situation. Okay, so this is a steady state will achieve when the output grow indefinitely, and the third the oscillates infinitely with the constant amplitude. Constant amplitude से एक बार आपने चेंज कर दिया, so ये चेंज होता रहेगा. Is it clear? So now you can see the graph of the system, a stable, neutral, and unstable, and explain. So it now seems perfectly logical to consider the process that ultimately settles down after having disturbed as being stable, and the one that fails to settle down as being unstable, right? जो आपका settle नहीं होगा, that is the unstable. So इसको कैसे डिफाइंड किया एक और टर्मिनोलॉजी में, थोड़ा सा इसको और हम लोग टी इनफाइनाइट के टर्म में जो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट कहते हैं, BIBO सिस्टम. स्टेबिलिटी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर, यू रिमेंबर्ड है ना, आपने पढ़ा इसको, स्टेबिलिटी के लिए BIBO सिस्टम होना चाहिए, बाउंडेड इनपुट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इफ इन द रिस्पॉन्स टू बाउंडेड इनपुट मींस पर्टर्बेशन कैसा होना चाहिए, वो बाउंडेड होना चाहिए. आप याद रखिए कि डिस्टर्ब कैसा होना चाहिए, आपका इनपुट कैसा होना चाहिए, दैट इज द पर्टर्बेशन, बाउंडेड होना चाहिए. ये नहीं कि इनफाइनाइटली आपने लगा दी, राइट? सो बाउंडेड होना चाहिए. देन इफ इन द रिस्पॉन्स टू बाउंडेड इनपुट, पहले ये कहा गया कि रिस्पॉन्स इनपुट कैसा होना चाहिए, तो बाउंड होना चाहिए. देन द डायनेमिक ट्रैजेक्टरी ऑफ अ सिस्टम रिमेन बाउंडेड एज t टेंड्स टू इनफाइनाइट. Then the system is tends to be stable. इसका मतलब समझ में आया
कि t tends to infinite होगा, then when the t tends to infinite, then आपका नेचर किस तरीके से t tends to infinite पे कुछ भी हो, but it tends to the zero, but this tends to the it should achieve the steady state value, right? Steady state values को achieve करना ही पड़ेगा. The dynamic trajectory of the system remains bounded होना ही पड़ेगा. अनबाउंडेड नहीं हो सकता कुछ इस तरीके से. ये अनबाउंडेड है, ये कहाँ जाएगा पता नहीं. अनबाउंडेड नहीं हो सकता, राइट? सो एट t tends to infinite मतलब लार्ज टाइम पे उसको बाउंड होना ही पड़ेगा for the bounded input, then the system is said to be stable, otherwise the system is unstable. Any doubt? Any question? Yes or no? No, sir. No, sir. So for the study of the linear system, or this whatever that we are reading, this is for the LTI system. So LTI system, it is normally this concept is known as the BIBO system, BIBO stability. This is a famous term, fancy term used for the stability term. That is the BIBO, right? So there are several practical questions concerning system stability that arise in the process dynamics and control. Some of the most important are: so when is a linear system stable? These are some query. These are some of the question you may ask. When is a linear system stable, and when is non-linear system stable? Can a system is stable by itself, naturally unstable? क्या वो सिस्टम अनस्टेबल पहले से रहा होगा या नेचुरली अनस्टेबल है? और कैन अ सिस्टम दैट इज अनस्टेबल बाय इटसेल्फ बी मेड स्टेबल बाय एडिशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम? क्या हम कोई कंट्रोल मैकेनिज्म लगा के अगर कोई अनस्टेबल है तो स्टेबल बना सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ नेचुरली स्टेबल सिस्टम बी मेड अनस्टेबल बाय एडिशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम? क्या वो पहले से नेचुरली स्टेबल था और उसको हम कंट्रोल मैकेनिज्म लगा के अनस्टेबल बना सकते हैं? तो पहले तो नीचे से स्टार्ट करते हैं. आप बताएं क्या है इसका, what should be the answer of the last question? Are you agree? Yes, sir. Can a natural stable system Yes, made sir. unstable Yes, sir, by बना addition of control mechanism? Yes, sir. बना सकते हैं. Okay. Yes, sir. कैसे बनाएंगे? Yes, जरा आप थोड़ा और elaborate करें. सर अगर उसमें निगेटिव फीडबैक लगा हुआ है और अगर उसमें पॉजिटिव फीडबैक लगा दें जिसकी वैल्यू निगेटिव फीडबैक से अगर ज्यादा हो गई तो जो डिनोमिनेटर वाला टर्म हो जाएगा वो इनफाइनाइट टेंड करने लगेगा. जैसे 1 प्लस GH वाला टर्म अगर डोमिनेटिंग हो गया तो नीचे 0 बनने के चांस हो जाएंगे. आप ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक करते हैं नेगेटिव फीडबैक की जगह पे? पॉजिटिव फीडबैक से सर. यस सर, अगर हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो वो एक रीजनरेटिव सर्किट की तरह भी वर्क करने लग जाएगा, तो उसके कारण गेन और वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता रहेगा. वेरी गुड आंसर. रीजनरेटिव सिस्टम की तरफ भी आप कर रहे हैं. इट इज वन ऑफ द गुड टेक्निकल टर्म यूज्ड. ठीक है. कोई और अगर निगेटिव फीडबैक में सिस्टम स्टेबल नहीं अनस्टेबल हो सकता क्या? जब देखो आप इस बात को समझिए, सिस्टम हमेशा निगेटिव फीडबैक के साथ ही काम करेगा. रिमेंबर, क्योंकि आप उसको एरर यहाँ पे आप इसको सेंड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन यही नहीं है. क्वेश्चन आप समझे ही नहीं इसका. फिर से क्वेश्चन समझिए. कैन अ नेचुरली स्टेबल सिस्टम be made unstable by addition of a control system? Control system means automatically that is the combination of negative feedback with some controller. Okay, मतलब जो कंट्रोल सिस्टम पहले आपने माइंड ब्लॉक डायग्राम में पहले पढ़ा था वही सिस्टम है अभी कंट्रोल सिस्टम है. इसमें कोई हम लोग फीडबैक वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं. और निगेटिव फीडबैक ही रहेगा कंट्रोल सिस्टम में, पॉजिटिव फीडबैक नहीं. इसके 50 मैंने लॉजिक आपको दे दिए है पहले भी. तो इस सिस्टम को आप बना सकते हैं कि नहीं? अगर ये पहले से स्टेबल है तो अनस्टेबल हो सकता है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म? सर अगर कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन ऐसा हो कि उसके पोल्स राइट हैंड साइड में बन जाएं तो फिर वो अनस्टेबल हो सकता है. गुड, वेरी गुड. और वो ट्रांसफर, हाँ
सर डिस्टरबेंस कोई भी अगर हम प्रोवाइड करें अब उससे भी कंट्रोलर का चेंज हो ट्रांसफर जाएगा। फंक्शन की बात करते हैं, जब कंट्रोलर की ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, वेरी गुड, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट वी हैव द थ्री or the combination of three different controller, that is the proportional controller, integral controller and the derivative controller. Proportional controller, integral controller and the derivative controller. Since you are the instrumentation engineer, so you have to remember this line, these three words, है ना, आपको बिल्कुल इसको आप समझ लीजिए कि इसको याद करके रख लीजिए पॉकेट में, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो proportional controller, integral control, derivative control. So this is 1 upon s. Derivative controller is, as you know, s. Proportional is simply k, right? So मतलब आप कुछ इस तरीके का आपका ट्रांसफर फंक्शन भी आएगा, ठीक है ना. सो चलो वो भी कुछ देर बाद देखेंगे. तो आप अच्छा दूसरा और कोई वजह हो सकता है जिससे सिस्टम अनस्टेबल हो जाए? सर डिस्टरबेंस अगर हम एंट्री उसको मिलती है तो. ओके, राइट, ठीक है. अब मैं बोलता हूँ, ये तो कंट्रोलर आप देख रहे हैं, इज दिस कंट्रोलर हैव certain parameters. The constant, it has some constant value, that is the kp 1 upon tau I and tau d. We will discuss these things in the very details after 2 or 3 lectures, but here it is needed, therefore I am just elaborating. kp, tau I and tau d, ये 3 टर्म है. These are the 3 terminology. This is the proportional constant, this is the reset time and the derivative time. Okay, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें एक ट्यून्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. ट्यून्ड वैल्यू, इफ योर ट्यूनिंग इज प्रॉपर, then the unstable system may be changed to the stable system, right? And vice versa. All depends on this value, all the transfer function. all the transfer function क्या दिया है आपने, डिस्टर्बेंस क्या दिया है आपने, और इसके पैरामीटर्स क्या लिया आपने. there are certain parameters, all are the responsible to make the system stable to unstable or unstable to stable, right? So now you can see the concept of stability within the terms of the location of the poles. So as you know that the first things is the bounded input, bounded output. Okay, और आपको एक चीज और बताया गया क्या, कि सिस्टम t tends to infinite पे, for the bounded input the response should be achieve the steady state or decaying towards the zero. It's clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So another things, in other terms you can say the poles having the negative real terms. ये कब होगा, जो अब मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, क्राइटेरिया केवल और केवल एक है, टी टेंड्स टू इनफाइनाइट पे वैल्यू आपका 0 डीके होना चाहिए और होना चाहिए. तो उसके लिए जब आप इसको फाइंड आउट करोगे अलग अलग लोकेशन पे, तो यू कैन सी दैट यू कैन मेड अप द डिफरेंट केसेस, राइट? तो वहां से ये कंसेप्ट आया कि निगेटिव रियल पार्ट जब होगा, आप देखेंगे कि सारा जो पोल है वो निगेटिव साइड में आ रहा है, तो सिस्टम बिकम्स स्टेबल, अदरवाइज इट इज अनस्टेबल, राइट? सो हाउ, if all the poles of the system lie in the left hand plane, the system is stable, and any of the poles lying in the right hand side, the system is unstable, and the pole lying on the imaginary axis, that is marginally stable. So what is it meaning? और इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें करेक्शन है, क्या है कि if the multiple poles, let's say this poles is lying at the same position, double pole at the same imaginary axis, then the system is not stable. Not stable. You can find out. Okay? आप इसको कर सकते हैं solve. So if the pole lying on the imaginary axis, system is marginally stable. कब होगा, जब आपका कुछ इस तरीके का केस होगा, सिंगल पोल लाई कर रहा है, system is stable, marginally stable. Okay? क्यों होगा, we will see. समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? तो स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनल स्टेबल का क्या मतलब है? एनी क्वेरी? बोलता नहीं है सब हाँ या ना. सो
No, sir. So बाउंडेड, तो व्हाट वी हैव स्टडीड सिंपल कि बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट होना चाहिए, है ना, और दस फॉर एनी बाउंडेड इनपुट द आउटपुट आइदर रिमेन कांस्टेंट और डिक्रीज। सो ये दिस इज द मेन थिंग, आपको इसको इसी पे सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है एलटीआई सिस्टम के, स्टेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है जो मैं बोल रहा था कुछ पहले। फॉर द बाउंडेड इनपुट के लिए आइदर एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट और डिक्रीज विद द टाइम, या आगे डीके होके टाइम पे हो जाए या कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट होगा तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा, ओके, और अगर वो डीके होके वैनिश कर रहा है, डिक्रीज विद द टाइम, देन सिस्टम इज स्टेबल। सिंपल सा फंडा और कुछ नहीं, इसी को आपको याद रखना है। एंड ऑल द कंसेप्ट बेस्ड ऑन दिस थ्री थिंग्स, बाउंडेड इनपुट, फॉर द बाउंडेड इनपुट the output should be remain constant or the decrease with the time, nothing else, right? And the system is unstable when if the input is bounded, the output is not bounded, means like this, e to the power n t. Okay, so now see the case. Let's say 1 upon s plus 3 is there, so e to the power minus 3t, the inverse of this function is to the power minus 3t. E to the power minus 3t means like this one. So t tends to infinite, correct? If the t tends to infinite, it approaches towards the zero. It approaches towards the zero, and therefore you can say that for the bounded input, है ना, ये आपका जो आप दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो रहा है, it is decaying. तो decaying nature है, तो आप इसको क्या कर रहे हैं, तो इसका नेचर कैसा है, पोल सा है। तो ये पोल अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यू आर सेइंग दैट दिस इज स्टेबल। तो कांसेप्ट कहां से है, यहां से, और उसका पोल का लोकेशन बाद में देखा आपने कि हाँ इसका पोल का लोकेशन ऐसा है, तो आपने कंक्लूजन टाइप में बनाना चाहा कि इसका अगर पोल इधर होगा, द सिस्टम इज अनस्टेबल। एंड सेम फॉर द e to the power 3t. e to the power 3t means it is like that, right? This is the term, ठीक है। नाउ तो ये आप देख लिए, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, ओके। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट हमने पोल ले रखा है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस वेरिएशन इन द पोल्स यू कैन सी दैट व्हाट हैपन। देखिए यहाँ पर जो इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, तो आप देखिए ये क्या हो रहा है, क्या है, रिमेन कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी। तो यू कैन पुट ये J3 मान लीजिए और J3 मान लीजिए, है ना, माइनस J3 मान लीजिए, और आप उसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो आप इसका पोल लोकेशन देखिए, उसका आप क्या करें कि उसको आप फिर से ड्रॉ करके देखिए रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो आप यू कैन सी दैट दिस इज द रिमेन कांस्टेंट एंड देयरफॉर सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। और इधर वाला जो है आप देख रहे हैं सीधा डीके होके टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, यू कैन सी द नेचर t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इट अचीव्स लाइक स्टेडी स्टेट और इट डिकेइंग टुवर्ड द जीरो, राइट। जबकि आप इधर जब जा रहे हैं तो आप यू कैन सी दैट this is the overdamped nature, or you can see the at t tends to infinite, it is the unbounded nature. Last topic is the predominant dominant poles. So what are the dominant poles, you can say, anyone can tell me? Dominant poles, सर लाइक जैसे कोई दो पोल है, एक ट्रांसफर जिनका टाइम फंक्शन का s = 1 और s = 100। एक मिनट प्रमोद, इसको बोलना तो फिर तुम बोल लेना। हाँ बोला दे तो फिर दोबारा से। हाँ सर, तो सर जैसे कोई ट्रांसफर फंक्शन के दो पोल आ रहे हैं, एक s = 1 पे और एक s = 100 पे, तो फिर वो 100 वाला पोल सर ओरिजिन से बहुत दूर है, तो सर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और s = 1 को मतलब वो डोमिनेंट पोल बोलते हैं, ऐसा कुछ। s = 100 को नेग्लेक्ट क्यों? अच्छा प्रमोद कुछ पहले प्रमोद बोल ले दो, प्रमोद कुछ बोला, बोलो। प्रमोद बोल रहा था ना, कोई और बोल रहा था? सर जिसका टाइम कांस्टेंट सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करता हो ना, उसको हम कंसीडर करते हैं, और जिसका इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब जिसका बहुत कम होता है, उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसके हम एक रेशियो लेके चलते हैं कि अगर किसी का टाइम कांस्टेंट 5 से ज्यादा है, मतलब 5 टाइम्स ज्यादा है किसी एक के टाइम कांस्टेंट से, तो हम उस 5 टाइम्स वाले से ज्यादा को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसका इतना कुछ खास रोल नहीं होता, वो मिली सेकंड या कुछ पॉइंट सेकंड में फर्क डालता है। तो मेजर तो 10 सेकंड्स का या 1 सेकंड का फर्क पड़ेगा। ओके, यू आर राइट। सो कांसेप्ट दोनों राइट है। कांसेप्ट ये है कि सपोज दिस द एट द पोल इज -100 एज सेड -1,
और ये इससे बहुत डिस्टेंस पे है, तो सिस्टम में स्टेबिलिटी ऑलरेडी इसके चलते है, इसको ये आप इस सिस्टम में ये चेंज नहीं कर रहा है। However, जब सिस्टम की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट जो भी करेगा वो ये करेगा, देयरफॉर द डोमिनेंट पोल इज का कंसेप्ट ये है। ओके गुड। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा कुछ इस तरीके से है कि लेट्स से द कैरेक्टरिस्टिक, आप इस क्वेश्चन को जरा देखिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम with steady state gain 2 means k equal to, right, k equal to 2 and the time constant is 3, tau is equals to 3, is under pi control। pi control में दो, अभी आपको पता है नहीं है pi control, लेकिन खैर मैंने आपको कुछ देर पहले बताया अभी कि pi इंटीग्रल कंट्रोलर होगा तो व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स, kp, tau I and tau d, right? Based on this ये kc आपका क्या हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, एंड दिस 1 upon tau I, this is the integral constant। so it is given pi के लिए प्रोपोर्शनल इंटीग्रल वैल्यू गिवन है, kc equals to 4, 1 upon tau I equals to 3/4। is this closed system stable or not, ये क्वेश्चन है कि ये क्लोज सिस्टम स्टेबल है या नहीं, राइट? ये एज्यूम करके चलना है बेटा कि कंट्रोल सिस्टम मींस द नेगेटिव फीडबैक। ओके, तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन, हाउ कैन यू फाइंड? सो सी दिस इज द सिस्टम k अपॉन, है ना, क्या है आपका 1 upon tau s, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम with pi controller, right? And then the feedback, negative feedback is here. So now we have to find out, so what the transfer function for the pi controller? So the transfer function for the pi controller is kc 1 plus 1 upon tau is, remember। so pi controller क्या है, ये p बन गया और ये i बन गया, इंटीग्रल टर्म। हम लोग इसके बाद में अभी समझ लो कि है, कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि ये है पीआई कंट्रोलर, हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि ये कैसे आया। तो अभी पीआई कंट्रोलर आ गया केसी 1 अपॉन टाउ आई एस प्लस ये, ठीक है जी। सो नाउ जस्ट टू फाइंड आउट, लेट्स से दिस इज द कंट्रोलर गेन and this is the system gain. So what is the transfer function for, what is the characteristic equation for the system? So आपको पता है 1 plus rs hs equal to 0, yes or no? Yes or no? अरे हाँ या ना बोलो भाई, सॉरी 1 plus gshs equal to 0, am I right? This is the characteristic equation. Yes sir. This is the characteristic equation. Okay, so what is the gs, what is the gs here, what is the hs? Hs is 1, no doubt. What is the gs? Gs is the g into gc. So you can write here 1 plus g into gc into 1, that is the negative feedback 1, equal to 0. This is the characteristic equation. Okay, so what is the g and what is the gc? So just to put the value, g is the k upon 1 plus tau s plus 1, and what is the gc? Gc is the kc into 1 plus tau is, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म आपका gc हो गया, that is the g. Okay, just to put the all the value kc 1 upon tau I 2 3, all the value, steady state value, all the value, right? You can find out the transfer, find out the steady characteristic equation, right? तो characteristic equation आ गया s square plus 3s plus 2. ओके, तो s square plus 3s plus 2 का आप पोल निकाल लीजिए, आप इसका रूट निकाल लीजिए, सिंपल। तो पोल आया s, the position of that pole is s is equals to -1 and s is equals to -2, so you can conclude that the system is stable. Yes or no? या तो आप इसका प्लॉट कीजिए, आप इसके कैरेक्टरिस्टिक को, आप इसका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको प्लॉट करके देखो, आइदर सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। और आप सिंपल एग्जांपल, सिंपल तरीका है कि जस्ट टू फाइंड आउट द रूट्स एंड कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी। यस यस, कोई पूछ रहा था, कुछ बोल रहा था? यस, No sir. ओके। नाउ अगर ये तो आपका है कि जब आपका ट्रांसफर फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हो, राइट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब आप टाइम उसको आप इस पिक्चर में, इस फ्रेम में पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन के फ्रेम में पढ़ रहे हैं। जब आप इसको स्टेट स्पेस के टर्म में देखेंगे, देन योर स्टेबिलिटी
then your stability you can find with the help of eigenvalue. Okay, eigenvalue. This is very much, again, once becomes very, very important, that is the eigenvalue. So the nature of this eigenvalue will state that the system is either stable or not. Again, this eigenvalue representing the same, that is your roots of the system. So if all the eigenvalue, if all the eigenvalue lie in the negative side, or all the eigenvalue is the negative real parts, you remember, negative real parts, then the system, you can say the system is stable. Okay, तो रियल नेगेटिव पार्ट्स का मतलब है कि लेट से -2 + 3j है, राइट? तो -2 + 3j मतलब आपका रियल पार्ट इधर लाई कर रहा है, सॉरी, -2 + 3j यहाँ है, तो आपका यहाँ पर लाई कर रहा है, यस और नो? दिस इज द पोजीशन, और इसका कंजुगेट यहाँ होगा. So again it is lying in the left hand side and system becomes unstable. So एक last problem and then I will leave the class. Let's say आप इसको state space equation में, this is the question, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है y is equals to 5/s² plus s-6 into us. Okay, इसको आपने कन्वर्ट किया है किसी भी तरीके से, ट्रांसफॉर्म किया, it is in the you can say the differential equation. Okay, और हमने इसको रिप्रेजेंट किया स्टेट स्पेस इक्वेशन में. So you already studying the advanced control system by Dr. सिकंदर सर, है ना? तो मुझे पता है वो जरूर आपने पढ़ा होगा इस चीज को, कैसे वो कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर. ओके, सो अब आपका मैट्रिक्स आ गया एबीसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब एबीसी मैट्रिक्स से आप उसको क्या फाइंड आउट करेंगे? आइगन वैल्यू. सो आइगन वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे आपका आएगा -3 -2 क्लास, तो -3 +2 and that is already okay. So you can see here the λ2 is your +2 value, then the system becomes the unstable. Okay, so my picture is only highlight करना चाहता है कि आइगन वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव आ गया, सिस्टम अनस्टेबल है, इट इज जस्ट बिहेव्स लाइक your roots, or you can say the poles, right? So I am stopping here, then we will discuss the conclusion tomorrow, and then we will start the new topic, that is your controller part, right? So thank you very much. अटेंडेंस दोबारा ले लिया जाए, 65 हो रहे हैं टोटल. चलो कर लेते हैं.